We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर बोले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कि सेना पर किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। आर्मी चीफ सेना को फ्री हैंड दिया गया था। आर्मी चीफ का यह कहना है, पहली बार राजनीतिक इच्छा शक्ति साफ तौर पर नजर आई थी। And since off Sindoor, you may be actually saturated by seeing the TV and the parliamentary debates. So I will not spend much time on that. I will say how the technology came into play. But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand-holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट समेत 6 विमानों को मिट्टी में मिला दिया गया। एयर चीफ मार्शल ने इस दौरान यह भी बताया कि किस तरह से हिंद के वीरों के पराक्रम के सामने महज 90 घंटे के भीतर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ का बड़ा बयान। 90 घंटों में घुटनों पर आया पाकिस्तान। रूस के S-400 ने कमाल दिखाया। अमेरिकी F-16 समेत 6 विमानों को मार गिराया। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को गहरी चोट लगी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने खुलासा किया है कि इस ऑपरेशन में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के 6 विमानों को मार गिराया गया। इनमें 5 फाइटर जेट और 1 सर्विलांस एयरक्राफ्ट था। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. एपी सिंह बेंगलुरु के HAL मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिला एयर डिफेंस सिस्टम S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के हर हमले के सामने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम 20 साबित हुए। Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like, those long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई के कारण पाकिस्तान 80 से 90 घंटे के अंदर घुटनों पर आ गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जंग लंबी खिंची तो उसे तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। More of
high-tech war which was fought. In about 88, 90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. वायुसेना प्रमुख ने सीजफायर के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूरा ऑपरेशन सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए किया गया था। जब हमने आतंकवादी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, तो जंग लंबी खींचने का कोई औचित्य नहीं था। Once we have achieved those objectives, we should look for all windows of opportunity to stop that, rather than just continuing. We were actually on a song that night. I hear from so many people. I don't want to say that, but some people very close to me have said, "Aur marna tha." I'm telling you that. But can we continue to be at war? No. Why should we be at war when we can avoid it or we can stop it? That is my way of looking at it. I think nation has taken a very, very good decision. दरअसल भारत ने 7 मई को रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारत ने जिन आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मरकज तैयबा, तेहरा कला में जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना महमूना जोया, बरनाला में लश्कर का ठिकाना मरकज अहले हदीस, कोटली में जैश का ठिकाना मरकज अब्बास, कोटली में ही हिजबुल मुजाहिदीन का मरकज राहील, मुजफ्फराबाद में लश्कर का लावई नाला कैंप और मुजफ्फराबाद में ही मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप शामिल हैं। भारत की इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। भारतीय सेना ने जिन आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था, उसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। दी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।